Hello and good evening and a very, very warm welcome to this session. My name is Meenakshi Oberoi and I welcome you to this session on Unlock Generative AI Safely and Responsibly. We will start a little slow because we know many other educators are still joining, but as they join, let me respect your time for being here. First of all, thank you so much. I know after a whole day in school, it is tough to actually come out of the classroom to meet me here. So Tahe dil se shukriya. Thank you so much for joining us here. Today's session is largely going to be bilingual. I will try and stay as bilingual as possible. But if you at any point feel that I need to slow down or you want me to, just not speak too much or too fast, then do let me know. I'll be happy to pause anywhere that you feel that I should pause. Do introduce yourself in the chat window. Would love to know where you're joining us from, which school, which city, and of course, it's always a pleasure to actually have you in this room. So welcome everyone to Empowering Educators with AI Skills. This is a part of Microsoft Elevate initiative, and today's session we will be unlocking generative AI safely and responsibly. In most of your classrooms, we have already reached. Well, either me or my colleagues have met you. हमने आपसे बहुत सारी बातें की और एआई स्किलिंग के बारे में हमने आपके साथ को पायलट से कैसे हम अपनी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं वो भी शेयर किया एंड इट्स ऑल हेल्पिंग एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स to be you to be able to use the power of AI, and I think it is keeping us at the forefront of being able to serve to students. बच्चों को उनकी बातें उन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि उन्हें वैसा सुनने को मिले या देखने को मिले जैसा वो चाहते हैं. Isn't it? Well, I'm sure that is your intent too. And while we as teachers have always been very cautious, today is a session to be absolutely cautious. And I know with AI, there are multiple dilemmas between ethics, safety, responsibility, who's responsible. So we are going to talk about all of that and, acknowledge more. Do share your introductions in the chat window, please. Do share your name, your school name, and the city from where you're joining. And of course, we are here to be able to take this great opportunity today to see how we can use AI as a co-pilot and not a replacement for teachers, and use generative AI in the way we can transform education. We as educators have always dreamt कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं या वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो हम अपने तरीके से बना पाते. तो आज हम उसी पावर के बारे में बात करेंगे, दैट इज जनरेटिव एआई. उसके साथ जुड़े डिजाइनिंग, जुड़े हुए क्रिएटिव्स और जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज के बारे में हम बात करेंगे सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अ ग्रेट टेक अवे एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज जनरेटिव एआई रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली. So just to welcome you, I have something for you. I just hope you can hear the volume. If you can't, do let me know. Well, you heard that. We should what's next. बिल्कुल यही हमारा एक आई थिंक हमेशा से एक चार्टर रहा है कि हम ये बच्चों तक पहुंचा पाए कि व्हाट्स नेक्स्ट इज ऑलरेडी इन योर क्लासरूम. हम एक today's teacher है, instead of being, maybe we are going to be a teacher here. So here we are, and it's absolutely fantastic to see you all here, to be able to see that you all have joined us here, and fantastic effort to actually find time to be here. Thank you for that. While I do so, I'm also going to request you that when you introduce yourself, please do mention your name and city, because that's very important for us. Thank you for that. And I'm also going to request that in case anyone requires any kind of assistance, please do let us know.
So we are here to explore the power of AI, but today it's also very special because it's also the Computer Science Ed Week across the globe. This week from 8th to 14th is the CSD week, that is the Computer Science Education Week. As a part of that, Code.org, Microsoft have come together, and what used to be Hour of Code is now called Hour of AI. So congratulations to each and every one of you. This year you are a part of Code of R of AI, and here as a part of that, we are hosting this in this Computer Science Education Week. And our focus today is to unlock AI responsibly. And you all know, AI is reshaping. I mean, while we were having conversations with you also, I think one thing was very clear. Um, AI is changing. There is no denying the fact. The only conversation that we had with you was इसे कैसे बदला जाए ऐसे कि वो अभी भी उसमें मी एज अ टीचर बहुत दिखे सो उस क्रिएटिव कंटेंट को हम विद इन सेकेंड्स डिजाइन कर सकते हैं बट आई एज एन एजुकेटर शुड बी अ मेजर रोल प्ले अ मेजर रोल ओवर देयर in ensuring that the tool is being used thoughtfully, ethically, and also that it always has a very clear way of enhancing what I do, or for my students, the kind of work that I offer to my students rather than replacing it. So over the next 1 hour, we'll explore how generative AI works and how we can actually discuss various things between risks, responsibilities, safety measures, and strategies of how to deal with this. And I think it's an important charter that we have taken on. And we are very privileged to be a part of Microsoft Elevate. We all know that, the world around us is reshaping. We are working to ensure that, AI helps expand opportunities. It strengthens what you already have in your institutions. And also it solves real world problems. Now, to do all of this, Microsoft came together to say that I think we need to put people first. We are committed to ensuring that AI serves everyone. And for a student, wondering what to study, or a teacher rethinking of how do I teach this, or, even even an institution thinking of how can we better and be more today as an institution, this is a place that is personal for each and everyone. It's why we believe that it's important that the work ahead isn't just building up smarter infrasystems or machines. It is about building smarter people, helping people solve their problems, and technology just being a part of that whole charter. That's why today, here we are, a part of Microsoft Elevate, and this is to ensure that AI transforms our world, and we put people first by equipping them with the skills, knowledge, and the tools that they need to thrive in this world. This charter is a huge charter. I have spoken to you this about this before, but I think it is only befitting for me to mention just about again that you all, I think we are very, very grateful to you because as a part of this Microsoft Elevate Academy, we aim to help about 20 million people earn these in-demand AI skills. And by being a part of this program, you all have actually expanded our horizon and given us an opportunity to be able to deliver the same. So thank you so much, each and every one of you. I think today's tech sector is it's not a race. I think it's more of something that we aim to reach, at our own pace and in our own way. Gone are the days when it was the latest gloss, new tech in the market, new ed tech, new device. I think we are beyond all of that. And history shows that I think technology can empower us, but I think creativity comes from within people. Connectivity comes from within people. Expanding knowledge is really up to us. But here, AI can be a leverage, a piece to leverage. I think nearly about 150 years after Thomas Edison lit his first bulb, hundreds and millions of people still, it is so sad that they still do not have the access to electricity. But I think in just about 15 years, social media has gone, I think, to every person on earth.
promising. It's a very promising tool to spread democracy, and it's a weapon of disinformation as well. Why do I say that? Because I think कोई रूल्स नहीं थे सोशल मीडिया को अडॉप्ट करने के, हमने सबने अपने तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। को बहुत लोगों ने बहुत अच्छा यूज किया, लेकिन कुछ लोगों ने मिसयूज भी किया। उसी से सीखते हुए, taking a learning from there, I think it is important that we sit down here with you in partnership so that you look at the approach. What is the offering? Why should we take it to our classroom? Challenge every opportunity that you get and believe in what you're taking to the classroom. Now, that is the whole intent. How do we help students with this? How do we enhance our instructions or strengthen our learning with this? How do we skill up our students with this and skill ourselves up? You are the ones who are going to shape this. Every part of this program is going to be about you, for you, and by you. There is no set way to actually run this. While people from various states join us over here today, as I can see very much in the chat window, I must make it very clear that in every state you'll have your own take. In fact, in every classroom you'll have your own take, because हर classroom अपनी ही एक personality लेके चलते हैं. Talking of personalities, you know what? 1st January 2025, जी ऑलमोस्ट एक साल पहले एक नई जनरेशन शुरू हुई थी. A new generation which was called Generation Beta. ये जनरेशन बीटा के बारे में क्या खास बात थी? Well, it was more than a milestone because it was a moment to pause and reflect. Think about this. एक नई जनरेशन शुरू हुई जो हम जनरेशन बीटा कहते हैं. क्या खास है इनके बारे में? कुछ बच्चे जो इस साल पैदा हुए, children who actually took birth in this will grow up in an entirely different world. उनके पास कोई भी वो एक्सपीरियंस नहीं है जो प्री एआई एक्सपीरियंसेस हमारे पास है. वो पोस्ट एआई एरा में ही पैदा हुए हैं. सोचने लायक बात है. और सोच के देखिएगा कि ये बच्चे आर नॉट merely born in this. They do not have any experiences of post pandemic. They do not know what climate change or climate conscious people look like. They will be climate conscious, right? They will be hyper connected. कोई तरीका नहीं है हमारे पास इस चीज को रोकने का कि उन तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, वो लोगों से ना कनेक्ट कर पाए, या अपने आइडियाज के लिए वो एआई की हेल्प ना लें. तो इस जनरेशन बीटा की ये रियलिटी है, और ये इसी रियलिटी को लेकर ये अपना कल शेप करेंगे. इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस, उनको लोकल कॉन्वर्सेशन से ज्यादा ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्ट होगा, बिकॉज इस वक्त वर्ल्ड इज फ्लैट. कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है, एंड विदाउट रियली any hesitation or the struggle of what you and we have been through, they are born in this world. इस जनरेशन को टेक्नोलॉजिकली एक्सेलरेट कर दिया है आज की दुनिया ने. अब उसको हम कैसे मैच करें हम पर है. इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम ये सोचे कि किस तरीके से हम इस जनरेशन की नीड्स को मीट कर पाएंगे, क्योंकि सून दे विल बी इन योर क्लासेस. इन लेस देन 3 years दे विल बी इन योर क्लासेस, क्योंकि एक साल तो ऑलरेडी हो चुका है. तो 3.5 या 4 साल का बच्चा होता है जब वो हमारी क्लास में पहली बार कदम रखता है. और अगर ऐसा है तो क्या हमने उनके लिए प्रिपेयर कर लिया है? बिकॉज उन्होंने ये स्ट्रगल जो हमारी है ये ना देखी है ना समझी है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एज क्रिएटर्स एंड नॉट जस्ट कंज्यूमर्स. सिर्फ बैठ के देखने और समझने वाली जनरेशन शायद पुरानी रह गई. अब वो यूजर्स भी नहीं रहे. कंज्यूमर्स तो दूर की बात है, हमारे बच्चे इस वक्त जो क्लास में है वो यूजर्स है. जो अगली जनरेशन आ रही है ना, वो क्रिएटर्स की होगी. Therefore, as adults, we need to learn too, and we need to learn in a way that this generation says, hey, these people did something right. इन्होंने कुछ तो ठीक किया होगा कि जो हमें अभी मिल रहा है क्लास में वो बहुत ही रेलेवेंट है. एंड आई एम श्योर हर टीचर यही चाहेगा कि जो हम क्लास में ऑफर करें वो बहुत ही रेलेवेंट हो. और आई थिंक हम उन्हें, आज के बच्चा जो आज पैदा हो रहा है, जो 4 साल बाद या 3 साल बाद मेरी क्लास में आके बैठेगा, उसके लिए भी तैयारी हम ही करना चाहेंगे आज.
उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी स्किल्स है। वेल, एज एजुकेटर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही एक मोमेंट है जिसमें हमें सोचना होगा कि कौन से ऐसे स्किल्स है जो बच्चों को आज के बाद चाहिए होंगे। गुड न्यूज़ इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक सर्वे करता है जिसे फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट निकालता है वो, और उस रिपोर्ट में दिए जाते हैं लेटेस्ट स्किल्स, जो कि एक स्किल सेट हमें प्रेजेंट करते हैं कि कौन से मोस्ट इन डिमांड स्किल्स हैं जो हमारे बच्चों को जॉब्स पे चाहिए होंगे। We not only owe it to alpha or beta generation, I think we owe it to all generations who sit in our schools and beyond. Therefore, the skill sets that WEF had kept in front of us are these. वो skills है creativity, problem solving, collaboration, digital fluency, and ethical reasoning. Ethics नहीं, ethical reasoning. डिजिटलाइजेशन नहीं, डिजिटल फ्लुएंसी। देख रहे हैं आप कितना बड़ा फर्क आ चुका है, स्किल सेट आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए टू कीप पेस विद दैट, माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज कीप्स एन आई ऑन व्हाट आर द डिमांड्स और द लेटेस्ट नीड्स फॉर our younger generations. Here are the top 3 skills that we have identified here to work upon. The three skills are cognitive and social emotional skills. I think ये हमारे lowest hanging fruits है, ये तो हम क्लास में ले जा ही सकते हैं. The challenge opportunity is how are you going to approach these skills in your K-12 classrooms? It is important that we as educators appreciate कि ये वो skills जो मुझे क्लास में लेके जाने हैं, because जो already है वो तो रहेंगे ही, लेकिन उनको relevant रहने के लिए ये skills उनके साथ जुड़ने जरूरी है. Here we are talking about three major skills: cognitive and social emotional skills. We're also talking about the consumption, that is consumptive digital skills. क्या चीज है जो हम उनसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं, which means that इस वर्कफोर्स ने अगर कुछ नया बनाना है तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो उन्हें चाहिए होंगे। तीसरे, प्रोडक्टिव स्किल्स। वेल, प्रोडक्टिव डिजिटल स्किल्स मतलब कि जैसे हम एआई से काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई थिंक इट इज इम्पेरेटिव फॉर मी टू मेंशन कि यही वो स्किल्स है जो हमारे स्टूडेंट्स को भी आगे लेकर जाएंगे। जब आप और मैं एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि इस तरीके से हमारे स्किल एनहांसमेंट हो रही है एआई यूज करने में, मेरा टाइम बच रहा है, मेरे प्लान्स बेटर बन रहे हैं, मैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर एआई से पूछूं तो वो मुझे बेहतर बता करके और मुझे भी बेहतर बनने की क्षमता दे रहा है, तो यही स्किल्स मेरे बच्चों को भी चाहिए। Maybe not today, but tomorrow we need to start thinking about how to give it in the hands of the students. क्योंकि आप ही ने मुझे बताया था ना कि हमारे बच्चे तो ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं। वेल, अगर कर रहे हैं तो इट्स टाइम दैट वी सिट डाउन to measure the risks, look at the responsibilities, and look at the way we take it safely. Therefore, it is only appropriate for me to begin talking about safe and responsible use of AI because it really matters in schools. We're going to talk about three things. What is generative AI? अब ये generative AI है क्या, कहाँ से आया, हमें क्यों यूज करना है, बायसेस क्या होते हैं, मिसयूज क्या होते हैं, and of course, safety and responsibility. So let's dive in. What is generative AI? Well, generative AI बहुत ही exciting, I think frontier है. मुझे बहुत exciting लगता है because you can build, it's literally building on decades of research, and इतनी बड़ी ये AI की field है जो I think 1800 से चली आ रही है, जो हमें पता ही नहीं था कि AI कुछ होता भी है. Generative AI relatively new है, but at its core, generative AI is just a sub branch of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी आई थिंक समझ में हम दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं। हमारे लिए एआई मतलब जनरेटिव एआई, लेकिन एआई एक सबसे बड़ा सेगमेंट है और उसके अंदर एक छोटा सेगमेंट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई में क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके लिए एक नया कंटेंट बना सकता है। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, या इवन कोडिंग। सो व्हाट इट डज इज it takes many changes, and ये सारे के सारे लर्निंग पैटर्न्स को देखता है और उन लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा,
एंड उसे अंडरस्टैंड करता है, उसे आपके कॉन्टेक्स्ट में लगाता है और आपके इंटेंट पे आपको डिलीवर कर देता है। इस सारे काम के पीछे एक चीज है, वो है एलएलएम। अब ये एलएलएम क्या होता है? LLM होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इट इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स। हमें इसमें कुछ समझना ज्यादा नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि किस तरीके से ये LLM वर्क करता है, राइट? हम जो हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर वो ये होगा कि हम सिर्फ इन टर्म्स को सॉरी समझ लेते हैं, क्योंकि कोई हमसे पूछे ये जनरेटिव एआई चलता कैसे, तो हमारे बच्चों को हमारे पास जवाब देने के लिए इतनी से इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? एक प्री सेट प्री ट्रेन डेटा है जो हमने, थिंक ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा, ठीक है, बिलियंस में डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बुक्स, आर्टिकल्स, इंटरनेट आर्काइव्स, जितना भी आप सोच सकते हैं वो सारा का सारा कुछ एक जगह डाल दिया गया है, इस मॉडल में डाल दिया गया है। ये ट्रेनिंग प्रोसेस है। इस ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू एलएलएम जो है वो और स्ट्रांग होता जाता है और प्रोफिशिएंट होता जाता है और इंटेलिजेंट होता जाता है कि अच्छा, अगर आपने बोला वर्ड सेंटेंस, लेट्स से यू से व्हाट इज अ सेंटेंस, तो वो हर जगह से ये डेटा ढूंढ करके एक जिस्ट निकाल करके आपको देगा, अपने पैटर्न्स को स्टडी करेगा, वो आपकी लैंग्वेज को कैप्चर, अब चाहे आप उसे सेंटेंस बोलें या आप उसे हिंदी में बोले, वाक्य जो बोले आप, उसको वो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा और आपको रिजल्ट दे देता है, विच इज एन एक्सेप्शनल लैंग्वेज स्किल। इट गिव्स यू अ रिस्पॉन्स। सॉरी, यू हैव सीन दिस एंड एक्सपीरियंस दिस थ्रू कोपायलट। कोपायलट में कई सारी चीजें हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, प्रेजेंटेशंस, पीडीएफ्स, क्रिएटिव्स, कई तरीके के क्रिएटिव्स आते हैं। सो इसमें सारा प्रोसेस क्या है? वेल, प्रोसेस है, think of generative AI as your trusted assistant, your thinking partner, जो कि आपको हेल्प कर रहा है सुपरचार्ज करने में आपकी प्रोडक्टिविटी, ताकि आपको नहीं बनाना पड़े और ये सारा काम आपको क्रिएटिविटी के साथ मिल जाए, आपकी इनपुट्स के साथ एक रिजल्टेंट मिल जाए, राइट? As we do that, generative AI is not just about creating text. It is about, इट्स वेरी वर्सेटाइल। लेट मी शो यू एक्चुअली। आपने सबने मेरे साथ जब एक्सपीरियंस किया था या अपने ट्रेनर्स के साथ जब एक्सपीरियंस किया होगा, तो हो सकता है आपने सिर्फ टेक्स्ट एक्सपीरियंस किया हो क्योंकि आप मोबाइल फोन पे थे। अगर आप किसी भी ब्राउजर में जाकर copilot.microsoft.com टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये सारी ऑप्शंस, लेफ्ट साइड में ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं। आप M365 कोपायलट यूज कर रहे हैं, आप अपने स्कूल के आईडी से लॉगिन कीजिए तो आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं। जब आप इन ऑप्शंस पे जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर है एक ऑप्शन क्रिएट। ये क्रिएट आपके मोबाइल फोन के क्रिएट से काफी अलग है, लेकिन दोनों जेनरेटिव एआई है। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए किसी तरीके से कोई भी इंफोग्राफिक बनाना चाहते हैं, देखिए मैंने यहाँ क्रिएट एन इंफोग्राफिक किया है। अगर मैं इसमें क्रिएट अ वीडियो पे चली जाती हूँ तो यहाँ पर ये मुझे वीडियो के लिए काफी सारी तरीके देने लगता है। अब अच्छी बात क्या है, मुझे प्रॉम्प्ट नहीं बनाना है। प्रॉम्प्ट जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे रेस्ट करती हूँ तो वो प्रॉम्प्ट अपने आप आ जाता है। इस प्रॉम्प्ट को मैं जैसे मर्जी मॉडिफाई कर सकती हूँ टू सूट माय नीड्स, और साथ में यहाँ पर मेरा कंटेंट भी आ जाता है। मान लीजिए मुझे इसी का वीडियो बनाना है तो मैं यहाँ से क्रिएट अ वीडियो फॉर दिस प्रेजेंटेशन, सीधा यहाँ पे क्लिक करूंगी और वो वीडियो बन जाएगा। नाइस, नो? वेल, अमेजिंग। अब इसे सेफली और सिक्योरली कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मान लीजिए आपने स्टोरी क्रिएट करनी हो तो भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स हैं जिसके ऊपर आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, और जैसे ही आप कहेंगे स्टार्ट विद दिस प्रॉम्प्ट तो ये आपको ऑप्शन देगा चेंज करने के लिए। यही है जनरेटिव एआई, जो आपको कुछ भी जनरेट देता है। तो मैं वापस जाती हूँ अपने प्रेजेंटेशन में, क्योंकि शायद आप इससे फेमिलियर हैं, लेकिन इसमें जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि हम सेफली और सिक्योरली इसे कैसे यूज़ करें। चलिए देखते हैं। और हाँ, इस वक्त आई वांट टू पॉज टू से, प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो
Do not shy away from sharing in the chat window. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने आप ये मेरे साथ शेयर करें कि आपको कोई सवाल ध्यान में आ रहा हो या आप कुछ क्लैरिफाई करवाना चाह रहे हो तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा. Right? Well, having understood all the points and all the things that we were to talk about, I think it's really great to have these powers and see कि AI कितने आराम से हमें मदद कर सकता है for bringing our ideas to life. Well, whether it is generating visuals or for receiving a science project, जो भी आप चाहे, हर चीज यहाँ पर आपके साथ आपके लिए बन सकती है. अब चलते हैं एक स्टेटमेंट की तरफ. याद रखिएगा, मेरे क्वेश्चंस मोस्टली आपके तरफ डायरेक्टेड होते हैं ताकि मुझे जवाब मिल सके. और मैंने देखा है कि मेरे पास एक पहला सवाल आया है. सो मैं रुकती हूँ यहाँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए. So can we create video infographics and docs from Copilot? Yes, using Copilot, you can create anything between a video, infographics, posters, जो भी आप चाहे, text, ऑडियो, वीडियो, जो भी आप चाहे, सब कुछ पॉसिबल है विद Copilot. गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन. और अब मेरी बारी. आई लाइक माई सेशंस टू बी इंटरैक्टिव. The thought that I want to share with you is AI is not just a tool, it's a mirror of our values. जी हाँ, जो भी हम हैं, जो भी हमारी वैल्यूज है, वो नजर आती हैं इस सब से कि हम AI कैसे यूज करना चाहते हैं. मैंने हमारी चैट विंडो में एक पोल एक्टिव कर दिया है. उसमें 2 सवाल है. मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ. सबसे पहली बात, व्हाट इज योर बिगेस्ट होप अबाउट एआई इन एजुकेशन? आपकी होप क्या है? वहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. आप 1, 2, 3 या 4 जो भी ऑप्शंस चूज करना है वो आप कर सकते हैं. यू कैन चूज मल्टीपल ऑप्शंस. और दूसरा सवाल है, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर अबाउट एआई इन एजुकेशन? या तो आप मुझे ये 1 बताएं, 2 बताएं, 3 या 4. हमने वहां पर आपके लिए 4 ऑप्शंस रखी हैं. There's a multiple options that you can choose. ये पोल अब लाइव है. या तो आप ये पोल यहां पर ले सकते हैं, नहीं तो आप ये पोल हमारे फॉर्म को यूज करके भी ले सकते हैं. मैंने आपको फॉर्म का क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर दिया है और लिंक पे हमारी चैट विंडो में ड्रॉप कर रही हूं. एज यू लाइक इट, जहां भी आप ये लेना चाहें पोल, वैसे पोल लीजिए. बिकॉज अगर इंटरैक्टिव नहीं होगा ना तो मजा सा नहीं आएगा. राइट? सो द लिंक इज इन द चैट विंडो. Please go ahead and take this any which way. So if you cannot see the options, then please go ahead, use this form, QR कोड को स्कैन कीजिए या हमारे इस पोल को ले लीजिए. जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए. I'll wait for your responses to come in. Yeah, the query over here is this is only for AI educators ID by using create option. Well, इसमें आपको आपका स्कूल आईडी चाहिए होगा, M365 स्कूल आईडी, जो अगर आपके स्कूल में अभी नहीं अलॉट किया गया है तो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा. थैंक यू फॉर आस्किंग दोज क्वेश्चंस एंड कीपिंग माय चैट विंडो अलाइव. बहुत अच्छा लगता है जब आपके सवाल और आपके जवाब दोनों हम तक पहुंचते हैं. आई एम लुकिंग एट द रिस्पॉन्सेज और मैं अभी चैट विंडो से आपके यहाँ पर डिस्प्ले देना चाहूंगी ताकि आप भी देख पाए हमारे पास क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ऑफ द पोल दैट वी हैव टेकन. बहुत अच्छा लग रहा है, आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. प्लीज अपने रिस्पॉन्सेज हमें दीजिए. बहुत अच्छा लगेगा अगर हम सबका एक कलेक्टिव व्यू यहाँ मिल जाए. यहाँ पर पोल में मेरे पास एक 1 रिस्पॉन्स आया है और मेरे पास आई थिंक हाँ मेरे फॉर्म में रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. प्लीज टेक दिस पोल. I can see we are many of us here, and I request you to please take the poll. It will really help us in bringing the main or common thoughts that you have with you. देखिए, इसमें भी मैं AI यूज कर रही हूँ आपके थॉट्स आप तक लाने के लिए. तो मेरी मदद कीजिए पोल का जवाब देकर. ये देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं यहाँ पर.
आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर अब कि ये रिस्पॉन्सेस आना शुरू हुए हैं। आई एम वेटिंग टिल नाउ वी हैव दीज रिस्पॉन्सेस विजिबल। अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे ये रिस्पॉन्सेस। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना देखकर कि हम सबकी सोच कितनी मिलती है। देखिए सबसे बिगेस्ट होप हमारी एआई से है कि पर्सनलाइज लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट हम एनेबल करें। इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स वांट एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज। अमेजिंग। एंड मेनी ऑफ यू वांट टू रिड्यूस टीचर्स वर्कलोड। पता है ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। आपके मैनेजमेंट के पास मैं ये पोल जरूर लेके जाऊंगी। इम्प्रूव्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट एक और चार्टर है जो टीचर्स लेना चाहते हैं। एंड आई थिंक personalized learning for every student is still now the front runner. So thank you for that response. देखते हैं अब what is the biggest fear? Well, डर तो हर एक को लगता है ना, क्योंकि नई चीज है और लगना भी चाहिए। नहीं लगा ना तो हम बेधड़क यूज करेंगे। इसीलिए सोच समझ के यूज करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा डर है लॉस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। एआई रिप्लेसिंग ऑथेंटिक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बट गेस व्हाट, यही तो हमारी स्ट्रेंथ है। यही तो एक चीज है जिसे हम जाने नहीं देते। ह्यूमन कनेक्शन पे तो हमारा पूरा का पूरा क्लासरूम टिका हुआ है। ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रन्स एट नंबर 2। सही बोला। इसीलिए बहुत जरूरी है दैट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी शुड नॉट टेक द बैक सीट, एंड दैट वी शुड बी एबल टू use our own thinking and creativity more than AI. Remember, HI will always be bigger than AI. Human intelligence का तो कोई comparison ही नहीं है. So thank you for responding to those, the question that I gave you. It really, really gave me a perspective, and also मुझे आगे आपसे बात करने का एक जरिया मिल गया कि मैं किस बारे में आगे बात करूं। जब हम इन सब बातों के बारे में बात करते हैं ना, तो और कुछ नहीं होता, एक मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है कि सही बात है। हमें एक्चुअली, आई थिंक एआई इज नॉट जस्ट अ टूल, इट इज अ मिरर ऑफ आवर वैल्यूज। बिकॉज जो हम सोचते हैं, आप देख रहे होंगे, होप्स में हमें वही चीजें नजर आई, राइट? हमारे रिस्पॉन्सेज थे पर्सनलाइज लर्निंग फॉर एवरी स्टूडेंट। दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर लुकिंग फॉर। रिड्यूसिंग अ वर्कलोड इज समथिंग दैट वी विल बी हैप्पी विद। बट आई थिंक अल्टीमेट गोल हमारा है कि अगर हमारे को स्टूडेंट्स के पास एक कनेक्ट बनाने का जरिया मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। So thank you so much for sharing your thoughts. You know, it's really great to see the optimism, personalized learning, and reduced workload, and how much we see that this will ensure that students will benefit equally as much as we do. And of course, concerns are absolutely valid, but there have to be strategies to mitigate that, isn't it? Well, over here, what you can do is, if AI can generate lesson plans, now this is a question that I'm giving you, इसके बारे में सोचते हैं मिलकर, क्योंकि यही सवाल मुझसे बहुत सारी क्लासेस में टीचर्स ने पूछा। If AI can generate lesson plans and quizzes instantly, how do we ensure that teachers remain the architects of learning rather than just editors of AI output? कितनी बड़ी बात है ना? एक आर्किटेक्ट ऑफ लर्निंग होना मतलब मैंने पूरी बैकबोन बनाई, मैंने ही पूरा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने ही वो एनवायरनमेंट बनाया, बस एआई से हेल्प ले ली। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज योर रोल, तो रोल ऑफ अ टीचर हैज ट्रांसफॉर्म्ड। वो रोल अब बन चुका है एक गाइड का, एक मेंटर का, एक फैसिलिटेटर का, एक आर्किटेक्ट का, एक एम्पैथाइजर का और एक इनोवेटर का। Notice कीजिए how these words reflect the qualities that AI cannot replicate. AI cannot do the empathy, judgment, creativity, and the ability to inspire students. जो आपकी आवाज, आपका demeanor, आपका हौसला जो बच्चों तक पहुंचता है, वो AI नहीं कर सकता. So architect of learning is equal to designer of experiences, जो एक टीचर के सिवाय कोई नहीं कर सकता। हेल्प जरूर चाहिए होती है। जिस तरीके से एक किताब, एक आई थिंक पेंसिल, पेन या वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड हमें हेल्प कर जाता है, बस एआई भी हमारे साथ उतना ही हेल्प करेगा। Being an architect means using AI as a tool to amplify my vision and explore strategies to keep it under control while leveraging AI. So,
रिस्पॉन्सिबल कैसे रहे? वेल, risks and responsibilities go hand in hand. While AI offers incredible opportunity, it also comes with responsibilities. I have a beautiful comment from Alok sir. AI can't cope socio-emotional status of students. Exactly. Maybe it can quote, but it can't cope. हो सकता है आपको बता पाए कि आपके बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली नहीं बता पाएगा कि उससे कैसे डील किया जाता है, बिकॉज डील तो आप ही कर पाएंगे. थैंक यू डॉक्टर लोग फॉर दैट ब्यूटिफुल कमेंट. तो हम जब यहाँ पर बात करते हैं रिस्क की, आई वॉन्ट टू हाईलाइट सम थिंग्स. मिस इन्फॉर्मेशन. एआई के कोपायलट में जब भी वो कुछ जनरेट करता है, तो अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो आपकी कॉन्वर्सेशन में हर कॉन्वर्सेशन के नीचे एक कमेंट आता है. वो कमेंट होता है, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इनकरेक्ट, प्लीज चेक दिस इंफॉर्मेशन थॉरली. विच मीन्स, वो कहते हैं ना, यात्री अपनी अ, जान के और अपनी सामान के खुद जिम्मेवार है. वेल, वो यहाँ भी अप्लाई होता है. एग्जैक्टली तो आप अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो जो एआई ने जनरेट की है वो एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, वो आप चेक करेंगे, क्योंकि फैब्रिकेटेड कंटेंट इज अ रियलिटी. ये कंटेंट डिफरेंट ब्लॉग्स से भी आ रहा है, जहां लोगों के ओपिनियंस भी होते हैं, बायसेस होते हैं, आउटपुट में रिफ्लेक्ट बायसेस. यू नो, आप अगर कभी भी किसी एआई टूल से बनाने को बोलेंगे, चलिए बना के देखते हैं. अभी बातें मैं जब कर रही होती हूँ ना, तो मुझे लगता है एक बार बनवा करके देखते हैं, फिर बात करेंगे. थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आई थिंक इट इज वर्थ स्पेंडिंग दैट टाइम. बिकॉज क्या होता है, दिस it is said that seeing is believing, and therefore I'll go actually highlight many things. Number one, I'm going to show you biases. आप मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कोपायलट का विंडो. मैं यहां पर बोलूंगी create a visual of a pilot, uh, police, policeman, a detective, a doctor, a nurse, a teacher, a driver. चलिए बहुत हुआ. मान लीजिए कि मैंने एक विजुअल बनवाया है इससे, और ये एक इमेज क्रिएट करने जा रहा है. राइट नाउ, एज दिस क्रिएट्स द इमेज, लेट इट कम एंड वी विल टॉक अबाउट इट. टिल देन लेट मी टॉक अबाउट प्रिवेसी. देखिए, यहां पर है, ये एक राइट साइड पे ऊपर आ गई एक ग्रीन शील्ड. इस ग्रीन शील्ड में है डेटा प्रोटेक्शन. बहुत जरूरी है, जब आप साइन अप करें तो आप जरूर पूछें कि ये डेटा कहाँ जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, किसके क्लाउड में रहेगा, और क्या मेरे डेटा पे ट्रेन किया जाएगा इस मॉडल को. वेल, दिस एंटरप्राइज डेटा प्रोटेक्शन विल इंश्योर यू कि माइक्रोसॉफ्ट के एजुकेशन वर्जन में आपके डेटा पे किसी भी तरीके की ट्रेनिंग मॉडल को नहीं दी जाती है. आज हमारे वन ऑफ द सेशंस में, कमलप्रीत के सेशन में इनफैक्ट, किसी ने पूछा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर क्या मेरा डेटा यूज करेगा और वो कहीं पर एक्सपोज करेगा. हमारी प्रिवेसी गाइडलाइंस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप प्रिवेसी गाइडलाइंस को एक बार जरूर पढ़ें, बिकॉज लाइक आई सेड, सीइंग इज बिलीविंग. वी वैल्यू योर कंसर्न्स, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ वो शेयर करें. लेकिन मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहती हूँ दैट एनी पर्सनल और ऑथेंटिकेटेड डेटा इज नॉट शेयर्ड विद थर्ड पार्टी, एंड इट इज़ डिजाइन टू एनहांस योर सिक्योरिटी. एंड ऐसे में आपके पास आते हैं वो सिक्योरिटी कोड्स, वेरिफिकेशन कोड्स, जो थोड़े मुश्किल लगते हैं लेकिन अच्छे होते हैं. चलिए, आ गई ये पिक्चर. बात करें इस पिक्चर के बारे में. बताइए, क्या खराबी है इस पिक्चर में? इतनी अच्छी पिक्चर है, जिसमें पायलट भी है, पुलिसमैन भी है, डिटेक्टिव भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, टीचर भी है, और एक ड्राइवर भी है. राइट? बहुत सारे लोग हैं, 6 लोग हैं यहाँ पर. बायस कहाँ है इसमें? मैं ऐसी बात क्यों करना चाह रही हूँ, और मैं यहाँ पर ये बात क्यों ला रही हूँ? जेंडर बायस. थैंक यू नीलम मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सुनकर. गरिमा मैम सेज, हाउ कैन एआई सिस्टम्स बिकम बायस्ड एंड हाउ कैन बायस बी रिड्यूस्ड? एब्सोल्युटली वैलिड अ क्वेश्चन.
पंकज सर कह रहे हैं एआई कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू इंफॉर्मेशन रैपिडली. यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. Garima Man says nurse is a female. So biased, isn't it? Well, I also felt like that. Indian context is missing. Absolutely, Alok sir. यही बात मैं आपके सामने लाना चाह रही थी. जबकि मैंने यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी दिया है, लेकिन बायसेस एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं. अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं कई सारे बायसेस दिखाती हूँ. इन सब मेन के फेशियल फीचर्स कितने परफेक्ट है, इनकी बॉडी और फिजिक कितनी परफेक्ट है, हर मॉडल चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, राइट. ये सब वाइट है, ये सब फॉरेनर्स है हमारे लिए, राइट. दिस इज अ टिपिकल इमेज ऑफ नॉट अस ओवर हियर. तो अगर मैं इसमें एक शब्द डाल दूं यहां पर कि इंडियन लाइए मुझे, ठीक है. अब मैंने यहां पर कर दिया विजुअल ऑफ इंडियन. ओके, लेट्स से मैंने बोला इंडियन. अब देखते हैं बायस आएगा कि नहीं आएगा, राइट. लेट्स से अब क्या होता है, एक और चीज जब तक वो जनरेट होता है, एक और चीज देखिएगा. जेंडर बायस, जैसे आपने बोला नर्स और डॉक्टर इज मोस्टली अ फीमेल. व्हाई कैन अ ड्राइवर नॉट बी अ फीमेल? व्हाई कैन अ पायलट नॉट बी अ फीमेल? आई मीन, आर वी लिविंग टुडे? सो व्हाई शुड एआई टॉक लाइक दैट? नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि मुझे अपने एआई को अपने हिसाब से समझाना है what my preferences are. Therefore, I should actually say over here probably an Indian male pilot, a female police woman. मैंने पुलिस मैन बोला था तो उसकी गलती नहीं है. A detective, possibly. I could say uh, I could say anything over here, between any of the states, between any of the regions. मैं जो भी चाहूँ उतना स्पेसिफिसिटी लाऊं. अगर मैं अपना प्रॉम्प्ट उतना जेनेरिक रखूंगी तो मुझे भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये मुझे वैसे ही रिस्पॉन्सेस देगा. तो अब इस पिक्चर में इसने क्या किया, हमारे पायलट साहब को इसने इंडियन बना दिया, और कहीं कहीं पर और मुझे दिख रहा है जैसे पुलिसमैन भी इंडियन ही नजर आ से रहे हैं, मगर बायसेस फिर भी रह रही है. So what I'm trying to tell you is biases are a reality. If you want to reduce biases, then it is up to us. We should be responsible enough. Now look at that. That's pretty much Indian, apart from a few faces. And पॉसिबली द यूनिफॉर्म्स. तो अगर मैं इसे और पर्सनलाइज करना चाहूँ या और कस्टमाइज करना चाहूँ या रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहूँ, सो पॉसिबली ऐसी इमेज मेरी क्लास में जाना और करियर्स के बारे में बात करना will make more sense than just bringing an image which my students can't even relate to. Yeah, I hope this made sense. I know it takes about a few seconds to just generate, but you get the idea. You know what I'm talking about. And yes, ma'am, prompts do matter. They don't just matter. I think even after the right prompts, हमें responsible usage लाना बहुत ज़रूरी है, और उस responsible usage के लिए हमें mindful रहना ज़रूरी है, ताकि हम इन biases को, इन misinformation को, इस image में जैसे सब कुछ नज़र आ रहा था, misinformation थी, हम और ये नहीं कि मैंने कुछ एक बड़ा यूनिक सा प्रॉम्प्ट लिया, मैंने एक बड़ा जनरल सा प्रॉम्प्ट लिया था यही बात कन्वे करने के लिए. Therefore, we need to look for misinformation, we need to look for biases, privacy. स्टूडेंट्स को अपना डेटा शेयर करना ना बड़ी कैजुअल सी बात लगती है, तो वो अपना डेटा बड़ी आराम से शेयर कर देते हैं. तो उन्हें बताना होगा what are the security risks. And of course, over reliance is something that we must be very mindful of. I think some of the ethical consideration in education should be कि AI should be able to enhance जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी इंटेग्रिटी को ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. हम एआई को इतना रिस्पॉन्सिबली यूज करें कि जो एकेडमिक रिसोर्सेज को हम एनहांस करना चाह रहे हैं उसमें हमें एनहांसमेंट का एलिमेंट अच्छे से नजर आए. I'll pause here because I have a question in the chat window. पंकज सर ने बोला actually we will be converted AI into our own reflections and our own images. Absolutely. अगर आप mindful रहेंगे तो ये जरूरी है कि ये ऐसा possible हो पाएगा. And I think I also got Chipotla as a
Oh, ma'am, I'm so sorry, but if we give the prompt like a female pilot, exactly, वो prompt में जो हम difference ले आए ना, उससे फर्क पड़ेगा. डॉक्टर वरिंदर कहते हैं, how can we ensure that AI becomes a tool for learning and not a shortcut for plagiarism? सर, आपकी इतनी बात कह देना ही हमारे दिमाग में ये सब बातें ले आता है. मैं कौन होती हूँ सर ये सब बातों के बारे में बताने वाली? आई थिंक इट इज़ फॉर अस, all of us, to actually sit down together to look at the best ways possible to shape. एक बड़ी छोटी सी प्लेजरिज्म को कैच करने की सबसे छोटी चीज़ सर बता दूं, वो ये कि जब हम अपना प्रॉम्प्ट दें तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करें कि यू शुड बी एबल टू साइट कि आपने कौन सा एआई असिस्टेंस या कौन से वेबसाइट को यूज़ किया है. तो जब मैं कोपायलट को कोई भी सवाल पूछती हूँ ना, तो वो मुझे बोलता है कि आप अम, जैसे अगर मैंने दिया प्रॉम्प्ट, राइट, उस प्रॉम्प्ट को मैं अगर अपनी क्लास में लेकर के जाऊं और मैं उस सॉरी मैं को पायलट पर लेकर के जाऊं और उससे ये पूछूं कि इसमें मुझे हर चीज पे साइट करिए कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ला रहे हैं. इन वन ऑफ माय सेशंस वन ऑफ द टीचर्स हैड आल्सो आस्क्ड मी दिस. इसीलिए मैंने बड़े आराम से वहां पर एक एग्जाम्पल दिखाया था कि अगर आप पूछेंगे ना तो वो आपको साइटेशन दे देगा. आप एक प्रॉम्प्ट ट्राई कीजिए. मान लीजिए आपने पूछा व्हाट आर अर्थक्वेक्स, वेयर डू अर्थक्वेक्स अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और गिव मी citation of where are you picking up this data from. वो लिटरली लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 नंबर करके आपको दे देता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई. दैट इज वन विच वे टू encourage स्टूडेंट्स टू लेट मी नो एटलीस्ट कि ये इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, ताकि हम उसे बेटर हैंडल कर सकें. एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक मोर. इनफैक्ट हर महीने हमारा एक सेशन होगा विच विल बी डेडिकेटेड टू जस्ट being ethical, being responsible, mitigating risks, and more. I have another question. What is the difference between bias and fairness in AI? Beautiful question. Bias हो गया कि वो एक systematic error है कि अनफेयर क्या होता है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग डेटा वैसा दिया गया है, या मॉडल डिज़ाइन वैसा है, या हमारा ह्यूमन डिसीजन वैसा है जिसमें लेट्स से हमने जैसे हमने फेशियल रिकग्निशन किया, राइट, अब रोशनी अच्छी नहीं पड़ रही है तो आपका डिवाइस कई बार आपको कह देता है ना कि आप इट डिड नॉट रिकग्नाइज यू. नाउ व्हाई? बिकॉज उस डार्कनेस में हो सकता है हमारा स्किन टोन डार्कर लग रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम को ट्रेनिंग दी है, मेरे फोन को ट्रेनिंग दी गई है कि मेरी शक्ल और मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन फीचर्स ऐसे हैं. तो अगर मैं मान लीजिए मैं नहीं देख रही हूँ अपने स्क्रीन की तरफ और इधर उधर देख रही हूँ, तो वो नहीं समझ पाता. Fairness, on the other hand, would be a principle, which means how does an AI treat an individual or group equitably or not? Which means that किसी demographic को वो recognize नहीं कर रहा है, regardless of what gender you are. वो कैसे आपको treat कर पा रहा है. So unfair AI outcomes would be like hiring कर रहे होते हैं. हायरिंग में अब हमने अगर बोला है कि मुझे पायलट चाहिए, तो वो क्या होता है जब वो उसमें शॉर्टलिस्ट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली पता चला मेल्स को पिक कर रहा है इंस्टेड ऑफ विमेन. दैट विल बी अनफेयर स्क्रीनिंग, राइट. अब जैसे हमने क्रेडिट स्कोर लिया या लोन अप्रूवल्स के लिए हमने एआई यूज कर लिया, अब वो हमें क्या कर रहा है कि हमारे को एक स्कोर दे देता है हमारे यूजेज के हिसाब से या हमारे बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से. उसमें क्या होता है कि कुछ हमारे ऊपर नीचे था, जहाँ पर कि हमारी क्रेडिट हिस्ट्री या जो हमारी बैंकिंग हिस्ट्री थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके बेसिस पे ही उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया. कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं. तो वो क्या हुआ, वो फेयरनेस के अंडर फॉल करता है. दैट विल नॉट बी अ बायस. आई होप आई बीन एबल टू लेंड यू एन एग्जाम्पल, गरिमा. इफ नॉट, प्लीज डू लेट मी नो. Neelam ma'am says AI should not become the co-author of our thoughts. How beautiful is that? बहुत अच्छी बात. डॉक्टर आलोक कह रहे हैं रूढ़िवाद और अन्यायपूर्ण एग्जैक्ट हिंदी ऑफ bias and fairness. Absolutely understood and absolutely taken, sir. So, what I'm trying to tell you is fabrications are a reality. ये language learning models है, ये artificial intelligence है. Fabrications are a reality. Check किसे करना है? Remember, AI can make mistakes.
So it's most important to not blindly trust that output. Yeah. And mostly, let's talk about staying safe online. Data privacy, never ever ever share your personal information. Personal information will not only be name, but there are many things. You know, जैसे avoid many times it'll ask you about your demographics. Many times it'll ask you about, tell me more details about yourself so that I'm able to give you more information. Don't do that. Because if you're not comfortable, you must not do that. अवॉइड हार्मफुल आउटपुट्स। मान लीजिए कुछ इनअप्रोप्रिएट सा कंटेंट आ गया, इस बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। आपके पास एजुकेशन कंटेंट है, उसमें ऑलरेडी आपके पास प्रोटेक्शन है फ्रॉम हार्मफुल आउटपुट्स, फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। तो आप जब इसमें ट्राई करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स ऐसे भी देगा, दिस this content may not be appropriate for education purposes. Therefore, you must actually take note of that. इसमें age appropriateness of the tool matters a lot. मॉडल कितना रिस्पॉन्सिबल है खुद से मैटर्स अ लॉट। इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, आप उसे कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। सिर्फ एक्सेप्ट कर लेने से अच्छा है कि हम उसे वेरीफाई करें। टू थिंग्स, टू स्ट्रैटेजीज। वन, प्लीज यूज एज अप्रोप्रिएट टूल्स। बड़ा अच्छा लगता है कई बार ये देख करके, अरे पता है हमारे बच्चे तो ये टूल भी यूज कर लेते हैं, लेकिन उस टूल की एक लिमिट है। AI opens doors to creativity and personalized learning, but young learners must be kept safely, must be taught how to use these tools safely and in a balanced way. इन द नेम ऑफ इनोवेशन हम ये नहीं सोचें कि हमें आगे रहना है, इसीलिए वी चूज अ प्लेटफॉर्म दैट इज डिजाइन फॉर एजुकेशन टू इंक्लूड मॉडरेशन एंड फिल्ट्रेशन फीचर्स। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तभी जब आप मुझसे पूछते हैं ना, को पायलट तो वैसे भी मिलता है, चैट जीपीटी तो वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, ये हम माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट क्यों यूज करें? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट हैज बीन बिल्ट फॉर एजुकेशन। AI features that are built in with student safety in mind. You avoid open-ended AI tools because they lack the content filtering. यहाँ content filtering आपके लिए मौजूद है। दूसरी बात, मॉडल रिस्पॉन्सिबल प्रॉम्प्ट्स। सबसे इजी काम क्या है? हम टीचर्स हैं, और एज टीचर्स आई थिंक हम सारा दिन बच्चों के सामने एक रोल मॉडलिंग करते हैं कि दिस इज हाउ वी शुड बी। स्टूडेंट्स लर्न बाय एग्जाम्पल। शो देम what it means to clearly craft ethical prompts. बच्चों की तो आदत होती है, जैसे ही आप बोले ना आप इसमें कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले गलत करने की कोशिश करेंगे। बच्चे क्या, हम भी कोशिश करते हैं। करके देख लीजिए। लेकिन I think responsible usage and reinforcing academic integrity, एक बहुत बड़ी टर्म है ये एकेडमिक इंटेग्रिटी। एंड आई थिंक ये जो है हमें ना सिर्फ बच्चों में, आई थिंक हमें एज ए सिस्टम पुश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक टर्म है जो रेफर करती है हमारी कमिटमेंट टू ऑनेस्टी, टू ट्रस्ट, टू फेयरनेस, टू रिस्पेक्ट, टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल दैट वी डू। हमारा वर्क जो हम प्रेजेंट करें विदाउट प्लेजरिज्म और फैब्रिकेशन हो, जो भी हम अपना एकेडमिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो रिलायबल हो और ट्रांसपेरेंट हो, वो आपको सारी बात साफ साफ बताए कि क्या यूसेज है। ट्रीटिंग अदर्स इक्वली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूइंग डाइवर्स आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स ओनिंग अप योर एक्शंस। मान लीजिए कुछ हो गया, कोई बात नहीं ना, कौन ठीक करेगा? हम ही तो ठीक करेंगे ना। इसीलिए हम उसे सामने लाएं, फोर फ्रंट पे, और उसके बारे में बात करें। अब ये सब हमें कैसे समझ आएगा? बड़ी इजी चीज है जी। आप जाएंगे कोपायलट पे, ये इस तरीके को कुछ प्रॉम्प्ट्स लेंगे और उन्हें ट्राई करके देखिए कि वो आपको बता पाता है कि नहीं, कि किस तरीके से हम ये यूज करें। सो फॉर योर कन्वीनियंस, मैं ये प्रॉम्प्ट्स आपके लिए चैट विंडो में डाल दे रही हूँ, ताकि आप ये प्रॉम्प्ट्स अपने एंड पर भी ट्राई कर पाए। एंड आई नो देर आर सम क्वेश्चंस इन द चैट विंडो। मैं अभी वो क्वेश्चंस लेती हूँ इन अबाउट नेक्स्ट 1 minute. So, of all the things that I have done over here, I'm going to urge you to practice responsible AI. And the practicing of responsible AI looks as simple as the ones given over here.
अगर आप ये प्रॉम्प्ट्स देखें, कितनी सिंपली इसमें हमने बिल्ड इन कर दिया है कि नो कॉपी पेस्टिंग विदाउट सेइंग नो कॉपी पेस्टिंग इन द फर्स्ट प्रॉम्प्ट। दूसरे में हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक एलिमेंट ले आए हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे कॉपी करके ला रहे हैं और वो कुछ देख नहीं सकते हैं कि कैसे उसमें अपने आप को मॉडिफाई करके लाएं, तो हमें उन्हें गाइडेड लर्निंग पे लेके जाना पड़ेगा, एंड ये प्रॉम्प्ट्स आपको हेल्प कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ से क्या तरीका रहना चाहिए टू बी एबल टू क्रिएट? एक्चुअली आई थिंक स्टार्ट स्मॉल। ये मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आज ही कर देना है। अगर हमारी इंस्टीट्यूशन में हम सिर्फ एक आइडिया पूल बना लें कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम स्टार्ट स्मॉल कर रहे हैं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है कि मैं अपने सिस्टम को बता पाऊँ कि क्या चीज़ सही है। Use AI for one task, that is brainstorming. What is it that we should do to draft a AI policy? उसके बाद create an AI use policy. Define what is acceptable and what is not. Then train your students, teach them responsible prompting, teach them verification skills, teach them everything because they are going to be the users. Ask AI, is AI enhancing learning or responsibly using or just replacing your effort? ये बात हमें रेगुलरली अपने आप से और बच्चों से पूछनी पड़ेगी। सो आज के की टेकअवेज, आई थिंक मैं कुछ कुछ ऐसे बता देती हूँ। एआई as your co-pilot, you definitely must use it. Think of it as your thinking partner. Sorry. Sorry. Use it wisely, use it responsibly. AI is definitely not perfect. Please stay alert. Always and always fact check. Well, be aware of biases. I think we've spoken about it. Always cite your sources. Protect your information, only you can. यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं. Mind your well-being, because getting addicted is not a good thing. And I think as adults, this is what we do understand. And my urgent request to each and every member in this room is, please help us build this responsible AI culture in your schools. It is extremely important that we build this culture. I have some beautiful questions and thoughts. I will just read those from the chat window. Pankaj sir says, why is it called artificial, whereas it is originated from human mind too? You're absolutely right. But we have created an artificial system to be able to sustain what we have been able to do, right? So here we are talking about biases, and we created artificial intelligence to help us to be able to augment what we are doing, to be able to enhance what we are doing, not replace us. Garima ma'am says, how can we modify a prompt when AI gives incorrect or hallucinated answers? Well, आपके पास एक डाउट आता है जैसे ही वो रिस्पॉन्स आता है, उसी डाउट को दे दीजिए कोपायलट को और पूछिए, व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू? Copilot will itself tell you what to do. I hope I've been able to answer your questions. हमारा नेक्स्ट सेशन होगा असेंशियल एआई रेडनेस पर, जिसमें हम बात करेंगे सिक्योर स्ट्रैटेजीज फॉर अ सेफ एआई फ्यूचर। ये सेशन हमारा जनवरी में होगा, एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स. Also, every Tuesday, we host Tech Talk Tuesday, and we invite you to be a part of this session. There is no cost attached, but I think धीरे धीरे अगर हम ऐसे ही मिल करके एक दूसरे के साथ बात करके ये सब चीज़ें सीखते रहे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और साथ में ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा सीखना छोटी छोटी पीसेस में. Before you go, your feedback is extremely important. I urge you to kindly give us a feedback about today's session, how you liked it or did not like it. What else would you like to hear about? And I sincerely hope that we have been able to give you the most of the hours for what you had joined with us today. Thank you so much. And, thank you for joining us here. It gives me great pleasure to see what an interactive room this has been. And I think it is our privilege. Kamalpreet and myself will take this moment to thank each and every one of you for being here all the time with us, for being so interactive, and for being just who you are, saying what you want, and being yourself. Thank you. And I will see you in a January session.
Don't forget to join us for Tech Talk Tuesday. We'll look forward to you joining us virtually. Thank you and bye bye. I'm here for any questions if you have, but if you need to go, I'll understand. Have a wonderful rest of the week. Thank you and bye bye.